Hello, you're watching CVR News English. This is Havila Kuttapalli. Welcome to Inside News. Well, moving into the details, Foreign Secretary Vikram Misri highlighted the evolving strategic partnership between India and France, marking a new chapter centered on innovation, science and technology. With India set to host the next AI Summit and the designation of 2026 as the India-France Year of Innovation, both nations are strengthening cooperation in these crucial sectors. Misri emphasized the joint declaration on artificial intelligence, focusing on the development of safe, secure and trustworthy AI for public good. Additionally, at the CEO's forum, the leaders unveiled the logo for the India-France Year of Innovation 2026, symbolizing the collaborative synergy. Well, key outcomes were also achieved in digital sciences and startup collaboration. Coming to the outcomes from the visit, let me point at outcomes in four major areas. I should say that there is a joint statement that has been released, so you can refer to the joint statement for details. I think it's either already on our website or will be posted there very shortly. Firstly, with the hosting, as I said, of the proposed hosting of the next AI Summit by India and the designation of 2026 as the India-France Year of Innovation, our strategic partnership is entering into a new era focused on innovation, on science and on technology. The two countries have adopted a separate declaration on artificial intelligence, which identifies our key priorities in this area and explores the possibilities of cooperation in view of the large alignment that we see between India and France insofar as AI is concerned. For instance, our shared commitment to promoting the development of safe, secure and trustworthy AI for the public good. At the CEO's forum yesterday, the two leaders also launched the logo of the India-France Year of Innovation in 2026, and I would encourage you to take a look at the logo that has been agreed, which represents, in a sense, the synergy between India and France. There were also outcomes in the areas of digital sciences and startup collaboration, which are contained in the list of outcomes that is being released separately. Secondly, in the area of civil nuclear energy cooperation, the two sides have concluded a declaration of intent on collaboration in co-designing, co-developing and co-producing small modular reactors and advanced modular reactors. The two sides will also be cooperating in the field of capacity building of leaders and professionals in this field. Given the coming revolution in AI and the demands that it will make on the energy vector, this particular area of cooperation and development of SMRs and AMRs is a particularly promising vector for India-France cooperation into the future. Thirdly, During the Maghi Purnima celebrations in Bagpat, Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath praised the large-scale participation of people taking a holy dip at Prayagraj Mahakumbh, highlighting that 50 crore people have taken a holy dip in Prayagraj. He also contrasted this with critics who, according to him, secretly took the coronavirus vaccine while publicly opposing it, and similarly secretly took a dip at the Sangam but discouraged others from doing so. CM Adityanath also accused these individuals of hypocrisy, stating when they got the chance they did nothing. एक दुर्लभ संजोग है, आज माघ पूर्णिमा है। संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती और अपने पूज्य पिता की विरासत को, दुनिया के प्रतिष्ठित पैकेज को छोड़ करके
मातृभूमि की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी की भी पावन जयंती का कार्यक्रम है। उनकी पावन जयंती के अवसर पर आज हमें यहां पर चौधरी साहब की इस पावन भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। एक दुर्लभ संजोग है, आज माघ पूर्णिमा है। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती और अपने पूज्य पिता की विरासत को, दुनिया के प्रतिष्ठित पैकेज को छोड़ करके मातृभूमि की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी की भी पावन जयंती का कार्यक्रम है। उनकी पावन जयंती के अवसर पर आज हमें यहां पर चौधरी साहब की इस पावन भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। BJP MP Bansuri Swaraj, after visiting a temple for darshan, highlighted the significance of the teachings of Bhagwan Ravidas ji on harmony and unity. She shared that BJP National President JP Nadda and Delhi BJP Chief Virendra Sachdeva is also visited the temple to seek blessing. Drawing inspiration from Prime Minister Narendra Modi, she emphasized that under BJP's leadership, the double-engine government will focus on development in Delhi, aiming to transform the city into a developed capital of developed nation. रविदास महाराज की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग देवनगर मंडल में करोलबाग जिले में आए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी यहाँ पर आए थे महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए। भगवान रविदास महाराज जी ने जो समरसता, एकता, सद्भावना का जो एक मैसेज दिया है, जो शिक्षा दी है, उसी को आत्मसात कर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में विकास का कार्य करेगी और दिल्ली भी विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी बनेगी। आज यही मेरी मंगल कामना है। आप सभी को भगवान रविदास महाराज की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग देवनगर मंडल में करोलबाग जिले में आए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी यहाँ पर आए थे महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए। भगवान रविदास महाराज जी ने जो समरसता, एकता, सद्भावना का जो एक मैसेज दिया है, जो शिक्षा दी है, उसी को आत्मसात कर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में विकास का कार्य करेगी और दिल्ली भी विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी बनेगी। आज यही मेरी मंगल कामना है। आप सभी को Following the conviction of former Congress MP Sajjan Kumar in the 1984 anti-Sikh rights case, AAP MP Malvinder Singh Kang expressed gratitude towards the justice system. He stated that the Congress-sponsored massacre happened in 1984 and former Congress MP Sajjan Kumar has been convicted for that. I thank the justice system and justice is being delivered after a very long time. Kang's remarks reflect a long-awaited sense of accountability for the victims of the riots. 1984 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ
इंसाफ मिलन जा रहा है। हालांकि एक कई दहाके हो गए लोगों को इंसाफ मंगदिਆਂ ਨੂੰ, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना कुछ इंसाफ जरूर ਹੁੰਦਾ नज़र आ रहा है। तो मैं जिथे साडी अदालतों का धन्यवाद करता है, जुडिशल सिस्टम का धन्यवाद करता है, उत्थे उम्मीद करता है कि जिहड़े होर भी दोषी है सिख कतलेआम के जिहड़े लोग होर दोषी है उन्होंने भी वध तो वध सज़ा होगी और सज्जन कुमार नूं भी साडी जिहड़ी अदालत है, सत्कारयोग जिहड़ियां अदालतां हैं, वो ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ी सज़ा जरूर उन्होंने देना जी। 1984 च कांग्रेस वालों जिहड़ी स्पॉन्सर सिख कतलेआम होया सी उहदे एक अहम दोषी सज्जन कुमार नूं सज़ा का ऐलान होया। सब तो पहला तो मैं अपने जिहड़े जुडिशल सिस्टम है, साडी अदालत का धन्यवाद करता है। बहुत ही देर नाल इंसाफ मिलन जा रहा है। हालांकि एक कई दहाके हो गए लोगों को इंसाफ मंगदिਆਂ ਨੂੰ, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना कुछ इंसाफ जरूर ਹੁੰਦਾ नज़र आ रहा है। तो मैं जिथे साडी अदालतों का धन्यवाद करता है, जुडिशल सिस्टम का धन्यवाद करता है, उत्थे उम्मीद करता है कि जिहड़े होर भी दोषी है सिख कतलेआम के जिहड़े लोग होर दोषी है उन्होंने भी वध तो वध सज़ा होगी और सज्जन कुमार नूं भी साडी जिहड़ी अदालत है, सत्कारयोग जिहड़ियां अदालतां हैं, वो ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ी सज़ा जरूर उन्होंने देना जी। 1984 च कांग्रेस In Srinagar, Jammu and Kashmir, JKNC MLA Ansan Paradesi announced that he had submitted a private member bill in the assembly seeking the prohibition of the sale and consumption of liquor in Kashmir. He emphasized that the demand for a liquor ban is widespread. Noting that Islam prohibits alcohol, Paradesi questioned why a state like Bihar could implement such a ban while Kashmir, a Muslim majority region, has not. He clarified that while he could have planned pan JNK in the bill, he specifically mentioned Kashmir and Muslim-dominated areas. आपको लेकर प्राइवेट मेंबर बिल जो है सबमिट की है, जी तो क्या कुछ उम्मीदें हैं अब? देखिए, जो मैंने कुछ दिन पहले प्राइवेट मेंबर बिल असेंबली में दे दी है रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ सेल एंड कंजम्पशन ऑफ लिक्वर इन कश्मीर। यहाँ पे कैंपेनिंग के दौरान और जो हर दिन हम लोगों से बातचीत करते हैं कि एक कॉमन डिमांड है कि कश्मीर में लिकर जो है बैन होना चाहिए। जो हमारा मजहब है, इस्लाम है, हमारा मजहब इस चीज की इजाजत जो है वो देता नहीं है। अगर बिहार जैसे स्टेट में लिकर बैन हो सकता है तो कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी जगह है, यहाँ लिकर बैन क्यों नहीं हो सकता है। मैंने कैंपेनिंग के दौरान भी, क्योंकि बीबी कैंट के एरिया में भी जब काफी समय के बाद जब ये शराब की दुकान पहले खुली थी, वो बादामी बाग कैंटोनमेंट बोर्ड का जो एक एरिया है उसमें स्टार्ट की थी। मैंने अपने कैंपेनिंग के दौरान भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से लोगों से ये वादा किया था कि सही मौका आने पे मैं ये जो उनकी दिली ख्वाहिश है कि कश्मीर यहाँ का एक सूफिज्म का एक कल्चर है, इस जगह से शराब का नामो निशान जो है वो मिटना चाहिए। उसी बारे में एक पहली पहल की है जो मैंने, क्योंकि मेरा असेंबली का फर्स्ट टर्म है, पहली बिल जो एक एज इन द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल जो होती है, मैंने जो लाई है वो प्रोहिबिशन ऑफ लिकर के लिए लाई है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ऐसी एक बिल है कि चाहे किसी ऑनरेबल मेंबर ने लाई हो या नहीं लाई हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बिल के हिमायती जो होंगे वो तमाम ऑनरेबल मेंबर्स होंगे। In a press conference, Rajasthan Deputy Chief Minister Diya Kumari revealed plans to introduce new film and tourism policies in the state. She shared that the government is aiming to release the film policy during the IFA Awards and is focusing on bringing significant changes to the tourism policy. Kumari emphasized efforts to attract more film shootings to Rajasthan, particularly in lesser-known destinations, to boost publicity. For the IFA Awards scheduled to take place in Rajasthan, she expressed a commitment to providing local artists
a platform and showcasing the rich art and culture of the state, aligning with the goal of promoting Rajasthan's identity through its famous slogan, Pararo Mahro Des. बिल्कुल जी। तो आज हम लोग एक प्रेजेंटेशन ले रहे हैं फिल्म पॉलिसी का भी, और जो नई फिल्म पॉलिसी और टूरिज्म पॉलिसी की, और बहुत जल्दी इसको हम लोग आगे लेके आएंगे, रिलीज भी करेंगे। अभी फिल्म पॉलिसी तो प्रयास करेंगे कि आईफा के दौरान ही हम लोग इसको रिलीज करें, और बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव, बहुत नवाचार भी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं टूरिज्म के क्षेत्र में भी, और फिल्म शूटिंग्स भी और हों राजस्थान में, उस पे भी हम लोग उनको भी इनकरेज करेंगे कि कुछ ऐसे वेन्यूज में फिल्म शूटिंग हो जो कि अननोन वेन्यूज हैं, अननोन डेस्टिनेशंस हैं, ताकि उनके बारे में भी प्रचार प्रसार हो। एक फिल्म शूटिंग से क्या होता है, कोई फिल्म बनती है या ओटीटी प्लेटफॉर्म में सीरीज बनती है, तो वो उस जगह के बारे में बहुत अच्छी पब्लिसिटी होती है। ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं ग्लोबली जिनके बारे में मूवीज या सीरीज शूट हुई है, और उसके बाद वो इतने फेमस हो गए हैं कि सब लोग वहां जाना चाहते हैं। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि वाया फिल्म मीडियम, फिल्म शूटिंग्स के माध्यम से हमारे राजस्थान के टूरिज्म का भी प्रचार प्रसार हो। और इसीलिए आईफा अवार्ड्स, जो कि इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी है, अवार्ड्स हैं, वो राजस्थान में होने जा रहे हैं। दूसरी बार भारत में होने जा रहे हैं, इससे पहले मुंबई में हुए थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक माध्यम होगा राजस्थान को प्रमोट करने का। उस अवार्ड सेरेमनी के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे भी जो कल्चरल आर्टिस्ट हैं, जो हमारे लोक कलाकार हैं, जो हमारे कलाकार हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म मिले कि वो भी अपने वहां पर डांसेस करें, अपने परफॉर्मेंसेस करें, ताकि उनको भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्योंकि ये जो प्रसारण होगा इस शो का, वो पूरे वर्ल्ड में होगा। तो हमको एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक जरिया मिलेगा, जिसमें हम राजस्थान को शोकेस करेंगे, राजस्थान के आर्ट कल्चर को शोकेस करेंगे, हेरिटेज को शोकेस करेंगे, और हमारे पूरे राजस्थान को कि भाई ये राजस्थान। बिल्कुल जी। तो आज हम लोग एक प्रेजेंटेशन ले रहे हैं फिल्म पॉलिसी का भी, और जो नई फिल्म पॉलिसी और टूरिज्म पॉलिसी की, और बहुत जल्दी इसको हम लोग आगे लेके आएंगे, रिलीज भी करेंगे। अभी फिल्म पॉलिसी तो प्रयास करेंगे कि आईफा के दौरान ही हम लोग इसको रिलीज करें, और बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव, बहुत नवाचार भी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं टूरिज्म के क्षेत्र में भी, और फिल्म शूटिंग्स भी और हों राजस्थान में, उस पे भी हम लोग उनको भी इनकरेज करेंगे कि कुछ ऐसे वेन्यूज में फिल्म शूटिंग हो जो कि अननोन वेन्यूज हैं, अननोन डेस्टिनेशंस हैं, ताकि उनके बारे में भी प्रचार प्रसार हो। एक फिल्म शूटिंग से क्या होता है, कोई फिल्म बनती है या ओटीटी प्लेटफॉर्म में सीरीज बनती है, तो वो उस जगह के बारे में बहुत अच्छी पब्लिसिटी होती है। ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं ग्लोबली जिनके बारे में मूवीज या सीरीज शूट हुई है, और उसके बाद वो इतने फेमस हो गए हैं कि सब लोग वहां जाना चाहते हैं। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि वाया फिल्म मीडियम, फिल्म शूटिंग्स के माध्यम से हमारे राजस्थान के टूरिज्म का भी प्रचार प्रसार हो। और इसीलिए आईफा अवार्ड्स, जो कि इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी है, अवार्ड्स हैं, वो राजस्थान में होने जा रहे हैं। दूसरी बार भारत में होने जा रहे हैं, इससे पहले मुंबई में हुए थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक माध्यम होगा राजस्थान को प्रमोट करने का। उस अवार्ड सेरेमनी के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे भी जो कल्चरल आर्टिस्ट हैं, जो हमारे लोक कलाकार हैं, जो हमारे कलाकार हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म मिले कि वो भी अपने वहां पर डांसेस करें, अपने परफॉर्मेंसेस करें, ताकि उनको भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्योंकि ये जो प्रसारण होगा इस शो का, वो पूरे वर्ल्ड में होगा। तो हमको एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक जरिया मिलेगा, जिसमें हम राजस्थान को शोकेस करेंगे, राजस्थान के आर्ट कल्चर को शोकेस करेंगे, हेरिटेज को शोकेस करेंगे, और हमारे पूरे राजस्थान को कि भाई ये राजस्थान। बिल्कुल जी। Well, BJP leader and chairperson of the J&K Waqf Board, Dr. Darshak Andrabi, has expressed strongly support for the private member bill introduced by JKNC MLA Ahsan Paradesi, which seeks a ban on liquor in Kashmir and Muslim-dominated areas. Dr. Andrabi emphasized that the youth in the region are currently lagging behind, heavily influenced by alcohol. She welcomed the proposed bill, stating that its passage would be beneficial with a strong focus on keeping the youth away from liquor.
नौजवान नस्ल के हवाले से अगर बात करें तो अब बात ये भी चल रही है कि असेंबली सेशन जो होगा उसमें बिल्स आ रही हैं शराब को बैन करने की। आपका क्या इसमें आपका मसला क्या है? देखिए, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो नशे की हालत में आज जिस कदर पीछे जा रही है, ऐसी चीजों को जब बिल को लाया जाएगा वो देखा जाएगा। अगर वो ला पाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं नशे से अपने नौजवानों को दूर रखें। थोड़ा बहुत आपसे ये भी जानना कि नौजवान नस्ल के हवाले से अगर बात करें तो अब बात ये भी चल रही है कि असेंबली सेशन जो होगा उसमें बिल्स आ रही हैं शराब को बैन करने की। आपका क्या इसमें आपका मसला क्या है? देखिए, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो नशे की हालत में आज जिस कदर पीछे जा रही है, ऐसी चीजों को जब बिल को लाया जाएगा वो देखा जाएगा। अगर वो ला पाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं नशे से अपने नौजवानों को दूर रखें। थोड़ा बहुत आपसे ये भी जानना कि नौजवान नस्ल के हवाले से अगर बात करें तो अब बात ये भी चल रही है कि असेंबली सेशन जो होगा उसमें बिल्स आ रही हैं शराब को बैन करने की। आपका क्या इसमें आपका मसला क्या है? देखिए, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो नशे की हालत में आज जिस कदर पीछे जा रही है, ऐसी चीजों को जब बिल को लाया जाएगा वो देखा जाएगा। अगर वो ला पाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं नशे से Congress President Mallikarjun Kharge, speaking about the deportation of Indian citizens from the US, criticized Prime Minister Narendra Modi's approach. He pointed out that while PM Modi often praises his friendship with former US President Donald Trump and claims that he can solve any issue with the US, the treatment of Indian citizens raising concerns. Kharge questioned why the deported citizens were sent on a good flight instead of a regular passenger flight, implying that PM Modi's friend was treating Indians poorly. He expressed that India could have arranged a special flight to bring the deported people back instead of allowing them to be treated in such a manner. देखो, मोदी जब वहाँ पर गए वो बातचीत कर लेंगे और कौन से इश्यूज पे वो बात करेंगे हमको तो मालूम नहीं है। और दूसरी चीज, मोदी जी जब हमेशा जाते हैं वो खुद बोलते हैं कि हमारा दोस्त है, और जो हमारा दोस्त पहले हम बातचीत करके उसको कहे थे वो सब ठीक हो जाएगा, इसके बाद फिर हम दोनों मिलके सुलझाएंगे। तो ये जो चीजें बार बार कहते हैं ये ठीक नहीं। उनका मुल्क किसी हिंदुस्तान ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं। अमेरिका ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। तो देश परमानेंट रहता, व्यक्ति ये आते हैं जाते हैं। पहले ट्रंप आया, फिर गया, फिर आया। मोदी आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन देश तो रहता ना। तो देश के हित में सोचना, उसके बजाय वो हमेशा ये कहते ट्रंप इज माय फ्रेंड, ट्रंप ही विल नाउ ही विल लिसन टू मी। ये बोलना ठीक नहीं। तो देखो, मोदी जब वहाँ पर गए वो बातचीत कर लेंगे और कौन से इश्यूज पे वो बात करेंगे हमको तो मालूम नहीं है। और दूसरी चीज, मोदी जी जब हमेशा जाते हैं वो खुद बोलते हैं कि हमारा दोस्त है, और जो हमारा दोस्त पहले हम बातचीत करके उसको कहे थे वो सब ठीक हो जाएगा, इसके बाद फिर हम दोनों मिलके सुलझाएंगे। तो ये जो चीजें बार बार कहते हैं ये ठीक नहीं। उनका मुल्क किसी हिंदुस्तान ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं। अमेरिका ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। तो देश परमानेंट रहता, व्यक्ति ये आते हैं जाते हैं। पहले ट्रंप आया, फिर गया, फिर आया। मोदी आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन देश तो रहता ना।
तो देश के हित में सोचना, उसके बजाय वो हमेशा ये कहते हैं। Tripura Chief Minister Manik Saha attended the flood relief and management program in Agartala, where he emphasized the government's efforts in providing relief and managing the aftermath of the recent floods. During the program, the CM assured the affected communities of the swift assistance and highlighted the measures being taken to ensure effective flood management in the future. CM also discussed the strategies for rebuilding infrastructure and restoring a normalcy, reinforcing the commitment to support those affected by the disaster. The program aimed to coordinate relief efforts, strengthen preparedness, and provide aid to the flood-hit areas of the state. প্রয়োজন তাদের জন্য যেভাবে ওনারা ডিস্ট্রিবিউশন করে সত্যিই এর জন্য প্রশংসার দাবি রাখে। 1988 থেকে ওনারা এই অভয় মিশন একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওনারা কাজ করে আসছেন। এখানে আপনারা 2024-এর অগাস্ট মাসে যে বন্যার পরিস্থিতি হয়েছিল, আমার মনে হয় ত্রিপুরাতে এত মারাত্মক আকারে এই ধরনের বন্যা আমরা অন্তত আমরা দেখিনি। এবং যখন আমার মনে আছে 19শে আগস্ট আমি দিল্লিতে ছিলাম, সেখানে মাননীয় আমাদের গৃহমন্ত্রীজির ওখানে আমার মিটিং হচ্ছিল। উনি জিজ্ঞেস করছিলেন যে ত্রিপুরার কিরকম বৃষ্টিপাত কিরকম হচ্ছে, মানে বৃষ্টি অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে অনেক দেরিতে মেইন। Well, that's all for now. Those were the latest updates in Inside News. Keep watching CVR News English. This is Havila Kuttapalli. Stay tuned.